हाय गाइस, आर यू एबल टू हियर मी? अगर आवाज आ रही है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. Okay, great. So I think you're able to hear my voice. All right. So let's wait for a couple of minutes, and I think you're not able to see my screen yet. So I hope you can see my screen now. Are you able to see my screen? All right. So I hope you can see my face also. Okay, great. So looks like everything is working absolutely fine. Let's wait couple of minutes for others to join because this is 4:40, 4:58, right? So meanwhile, till the moment people are not joining, they're still coming up. Couple of minutes I'll take for GST Suvidha Kendra new portal that we are going to launch in the month of January. So there are a lot of things that we have started, or I mean the detailed pages, better documentation process, and training on the same page. And the best part is it got the sample calls. Like if you want to speak in Hindi, English, you want to know how to speak to your customer, these kind of things we have made. But this is just to give you the overview. But our topic is finance products today. So we will focus on that. So let's wait for another minute. Let the people join and see. So hi guys, this is Mayank Jain, Director of Prologic Web Solutions Private Limited. So let's start the meeting. So if you can type your name and your city, that will be wonderful, so that I can understand you are able to hear me, you are able to see me. So write your name and your city so that we can interact in a better way. And today meeting is all about GST Suvidha Kendra Finance product launch. All right, so I'm getting responses from the people. Great. Please write your name so that we can start the meeting. Yeah. Okay. From Bangalore. Nice. Bijapur. Konda. Muradabad. Nice. Okay. So guys, thank you. Thank you for joining the meeting. As you know that we keep on improving our services, we keep on improving our products. So today we are very happy to tell you that we are starting our GST Suvidha Kin Finance portal where you can see a lot of options to work upon, and we'll go through it one by one, like what kind of things you're going to get and how this can benefit you. So before we start, so guys, GST Suvidha Kendra system is going to be redesigned and will be launched in the month of January, maybe somewhere around 8 to 10 Jan 2024. So this is how the new portal will look like. This is a quick overview. Like I want to do a GST registration, for example. Now there's a lot of text about it. What is it?
the documentation process has been improved. As you can see, pricing, concept training in both the languages, Hindi and English. I think आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दोनों language का इस्तेमाल करूंगा. And there are sample calls also, like अगर आपको अपने customer से बात करनी है, how to speak to your customer. So all kind of sample calls, everything has been built, right? So you can see that हम लोगों ने काफी इसके ऊपर मेहनत की है, sample calls पे और FAQs पे. So every portal, every dashboard has been designed in such a way that अब चीज सबको समझ में आए, और हम लोग काफी सारा इसमें चीजों को ऐड करते जा रहे हैं अब. तो इस पोर्टल को आप देख पाएंगे 10 जनवरी ऑनवर्ड्स. अब आते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे, जो हमारी मीटिंग का मेन एजेंडा है. ऑलराइट गाइस, सो एनीबडी हैज प्रीवियस एक्सपीरियंस, किसको पहले से एक्सपीरियंस है? आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू प्लीज टाइप यस? ओके, ग्रेट, थैंक यू. बीच में बंद हो गई थी, सॉरी. सो आप में से किसी को फाइनेंशियल चीजों का नॉलेज है, पहले काम किया है? कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा. सो अब हम सिस्टम को जब बात करते हैं, तो हम सिस्टम में सबको लेके चलना पड़ता है, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो इसका नाम रखा है हमने प्रोफिन, प्रोलॉजिक फाइनेंशियल पोर्टल. बेसिकली इसके अंदर आपको 4 मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं. पहला है लोन, जो 2 टाइप का है, वो हम आगे देखेंगे. क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग अकाउंट, सेविंग एंड करेंट, ऑफ कोर्स, डीमैट म्यूचुअल फंड्स. सो इसमें आपको समझना ये है कि मैंने ये हाई कमीशन और लो कमीशन क्यों रखा हुआ है. क्योंकि जहां पे बैंक ज्यादा कमाएगा, वहां पे आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा. जहां पे बैंक कम कमाएगा, वहां पे आपको कम कमीशन मिलेगा. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, तो आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है. तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं: पर्सनल लोन, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट लाइन, ओडी. क्रेडिट लाइन, ओडी क्या होता है हम बाद में बात करते हैं. क्रेडिट कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, डीमैट जिसको ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड्स. सो क्रेडिट लाइन और ओडी क्या होता है, ये 2 मिनट में समझ जाएंगे हम लोग. क्रेडिट लाइन और बिजनेस लोन और ओडी, ये एक पार्ट समझिए. ये रिलेटेड टू बिजनेस यूजर्स है, जिनको बिजनेस लोन चाहिए होता है. तो अगर मैं लोन ना लेके एक तरीके से क्रेडिट लाइन ले रहा हूं, वो भी इनडायरेक्टली एक लोन ही है, बट इसके अंदर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन कम होती है. ये आपके मंथली करंट अकाउंट की बैलेंस शीट, या ये कहते हैं कि स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसमें अ लिटिल बिट हम कह सकते हैं, किसी का अगर अच्छा टर्नओवर डेली का चल रहा है या महीने का चल रहा है, उसके ऊपर लोन हो जाता है. बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी कम लगती है. ओडी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपको फ्यूचर में अपने बिजनेस पे लोन लेना है, और आप बैंक से डॉक्यूमेंटेशन करा के एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐड कर लेते हो, कि कल को अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कम भी हो गए, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट कर सकता हूं. अगर मेरा ओडी बना हुआ है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बना है, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, और आपका जो ओडी लिमिट है वो 5 लाख का है. तो अगर आप 6 लाख रुपए का चेक काट देते हैं, तो आपके अकाउंट में 1 लाख होने के बावजूद भी वो 6 लाख आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही इसको बना रखा था. इसका एडवांटेज ये होता है कि जितने दिन आप इस ओडी को यूज करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट उतने दिन का देना है. बिजनेस लोन इज लाइक पर्सनल लोन, बट बिजनेसमैन के लिए. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, आप समझ सकते हैं. और भी आप यूट्यूब वगैरह पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में.
क्रेडिट कार्ड ऑफ कोर्स। तो ये जो ऊपर के 5 प्रोडक्ट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो नीचे के 4 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जरा कम काम होता है, थोड़ा सा, आई मीन लिटिल बिट डिफरेंट, बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पीपल कैन रेज देयर हैंड। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज राइट यस so that we can continue. Okay, great. Thank you. So products का डेमो देखने के लिए let me take you towards the portal. This is the portal. ये जीएसटी सुविधा केंद्र के जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनको तो ये मिलेगा ही मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी अलग से, ये आपके प्राइसिंग प्लान में इंक्लूसिव है। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमने अब जितने भी प्रोडक्ट्स के नाम दिखाए आपको, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेंशन है कि जैसे क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल, तो इतनी सारी कंपनियों का क्रेडिट कार्ड है, जैसे कोटक का है, बजाज का है, इंडसइंड बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, और भी हैं, एयू क्रेडिट कार्ड है। अगर हम पर्सनल लोन, बिजनेस लोन की बात करें तो हमारे पास टाटा कैपिटल, मनी व्यू, प्रीफर, टाटा कैपिटल दो तरह का है। एक उन्होंने जिस कंपनी का एक्वायर किया है, इंडिया क्रेडिट फिल्ट्रॉन, उसके साथ है। इंडसइंड बैंक का है, नीरा है, इन सब के अलग अलग फीचर्स हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। बिजनेस लोन्स हैं, प्राइवो है, क्रेडिट भी है, इनक्रेड है, एम पॉकेट, स्टैशफिन। अब क्या है, पे सेंस है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे, अगर हम चीजों को ना ज्यादा ध्यान दें तो आपको पहले फोकस ये करना है कि मैं क्या क्या बेच सकता हूँ और क्या क्या मेरे को कमीशन मिलेगा। सेविंग अकाउंट ओपनिंग, यू नो, कोटक, एयू, यस बैंक, एक्सिस। देखिए एक चीज है, यहाँ पे आपको ना मैक्सिमम मैक्सिमम आपको प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी ही मिलेंगे। कुछ लोग पूछ सकते हैं भाई ऐसा क्यों, स्टेट बैंक क्यों नहीं है या और चीजें क्यों नहीं है? द रीजन बीइंग इज प्राइवेट प्लेयर्स ही ज्यादा कमीशन देते हैं, सरकारी लोग उतना जल्दी डिजिटाइज सिस्टम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोगों के डाउट्स हो सकते हैं, ये आप आराम से ओवरव्यू कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, डीमैट के अंदर है और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। तो गाइस, लोन और क्रेडिट कार्ड के केस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिबिल। तो सिबिल इज लाइक, आप कह सकते हो कि ये आपकी फाइनेंशियल कुंडली है, राइट? जैसे हॉरोस्कोप होती है ना हमारी, काइंड ऑफ दैट। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो आपका स्कोर एक बनता है। सिबिल स्कोर को अब्रॉड, मतलब इंडिया के बाहर, अमेरिका वगैरह में क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं। तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मिलता है हमको। उसका जो व्यक्ति का क्रेडिट वर्थ है, राइट, वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर एक कि उनकी इनकम कितनी है, नंबर टू उन्होंने कितने लोन लिए हैं, उन्होंने कितने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि उन्होंने लोन का ईएमआई कोई बाउंस तो नहीं हुआ है, क्रेडिट कार्ड का जो आपका महीने का पेमेंट साइकिल है वो मिस तो नहीं किया है, आप डिफॉल्टर तो नहीं है। तो यहाँ से एक्चुअल में सारी बातें शुरू होती हैं। तो अब आप लोग बोल सकते हो कि भाई क्रेडिट स्कोर ना ना पता हो तो क्या करें, इसके बिना लोन और क्रेडिट कार्ड का काम करना बेकार है। मतलब आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे। ठीक है, ओके। तो अब कोई व्यक्ति को नहीं पता है कि भाई मेरे को कैसे देखना है अपना क्रेडिट स्कोर, तो हमने पोर्टल के अंदर एक ये दिया है, एक लिंक दिया है कि जहां से आप, मतलब जिस व्यक्ति के लिए आपको ये फॉर्म भरना है उसका क्रेडिट स्कोर आप फ्री देख सकते हैं। तो 1 सेकेंड, ओके। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, ये सरकारी साइट है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, सिबिल स्कोर अगेन अभी फ्री में दे रहे हैं ये लोग।
तो जिस व्यक्ति का ईमेल मतलब जिनका पैन कार्ड है, जिनका आधार और पैन कार्ड लिंक है, ये उन्हीं के साथ काम करेगा। यहाँ पे व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर देके और अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड देके अपना इंफॉर्मेशन सिविल स्कोर देख सकता है। अब मैं दिखाता हूँ सिविल स्कोर दिखता कैसे है। ये आपको पोर्टल के अंदर ही मिलेगा। मतलब ये है सिंपल, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, स्पेशली इन लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स, आप उसका सिविल स्कोर को समझें। अगर आप सिविल स्कोर नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इनमें से मैं, मेरे लिए देखिए लोन के ऑप्शंस बहुत हैं, अब बहुत ज्यादा हैं। कोई किसी का अगर क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर अगर 700 से ज्यादा है, तो अब मैं टाटा कैपिटल में अप्लाई करने गया, 700 के नीचे लेट्स से 670 वाले के लिए अप्लाई करने गया, तो खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो नाउ हाउ इट लुक्स लाइक, नॉट दिस, वन सेकेंड, या सो ये मेरा ही एक स्क्रीन है एक्चुअली, यू कैन सी दैट कि आपको आपका सिविल स्कोर कुछ ऐसे दिखाई देता है। सिविल स्कोर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द गेम, ओके। इसके अंदर बहुत कुछ है, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मेरे को बताने, जब आप वो सब करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, सिविल स्कोर निकालोगे, आजकल बैंक फ्री में देते हैं और बहुत सारी ऑनलाइन साइटें देती है, मगर एक बात का ध्यान रखना, आप जो साइट हमने दी है वहीं से करना, नहीं तो क्या होगा, आपका डेटा हो जाएगा पास ऑन दूसरे लोगों के पास। जो साइट आपको फ्री में क्रेडिट स्कोर दे रही है ना, वो आपके संग कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहती है। ये सरकारी साइट है जो हमने लिंक दिया है पोर्टल में, बट अगर आप पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ वहां करते हो, तो उसमें फायदा नुकसान होने के चांसेस ये हैं कि जो आपका कस्टमर है वो उन लोगों से डील कर लेगा और आपको उसका बेनिफिट यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, करेक्ट। तो जब आप सिविल स्कोर को जब ध्यान से देखते हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये बताते हैं कि भाई मैंने कितने लोन अपने क्लोज कर दिए, कितने मैंने अपने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए, या मेरा कितने अकाउंट्स थे और अभी मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ से चल रहा है, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है, राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स आउट। तो आपको केवल ये पता करना है कि इनका सिविल स्कोर क्या है, ठीक है। और अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, आप इसको पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ईएमआई लैप्स हो रही हैं और क्या हो रहा है, वो बात की बात है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द सिविल स्कोर। आई होप यहां तक सबको क्लियर है कि व्हाट इज सिविल स्कोर, फ्री में कैसे देखेंगे। क्लियर है सबको यहां तक? क्योंकि इसके बाद का काम बहुत आसान है। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ। ओके, ग्रेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सिविल स्कोर रिक्वायर्ड होता है लोन और क्रेडिट कार्ड के केस में। देखिए, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है। जो आप डेली एक्सपेंडिचर कर रहे हो, 30 दिन में आप जितना एक्सपेंडिचर करोगे उसको आप मतलब 40-45 दिन में पे आउट कर रहे हो, राइट। अगले महीने की बिलिंग साइकिल में आता है जो अभी का खर्चा होता है, तो आप एक महीने के इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो। और आजकल के लोगों का थोड़ा फैशन है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। सो या अगर उनका काम चल रहा है और आपकी इनकम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दो केसेस में मेरे को सिविल स्कोर रिक्वायर्ड है, तभी हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। आप मतलब आप करते रहे, कोई फायदा नहीं है उसका, तो एफर्ट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो बैंक अकाउंट और डीमेट, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक तो वही आप जितना पैसा रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डीमेट म्यूचुअल फंड है वो लोग ब्रोकरेज कमा रहे हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दिस, यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आगे की बात। सर्विस लिस्ट एंड कमीशन। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर्विस लिस्ट एंड कमीशन जो है वो यहां से है। अगर आप बात करें पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की, तो आप एक चीज देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर, एक ही बात मान लीजिए, इसको लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसका सिविल स्कोर 650 से कम है,
ठीक है, 650 से कम है, तो आप इस शीट को समझ सकते हैं कि आप उसके लिए काम भी करेंगे तो भी कोई फायदा होगा नहीं। अब किसी व्यक्ति का स्कोर 700 एंड अबव है, आप उसके साथ काम करिए जो आपको सबसे ज्यादा कमीशन दे रहा है। अब यहां पे बात समझने की यह है कि आपको क्रेडिट भी यहाँ पे 700 के स्कोर के ऊपर 3% दे रहा है और पे सेंस 650 के ऊपर भी 3% दे रहा है। ठीक है, अब अगर कोई 700 के स्कोर के ऊपर 1.5% दे रहा है और वही 700 के स्कोर के अबव 3% दे रहा है, तो आपको कहां पे अप्लाई करना है? इट्स क्लियर टू यू। अगर हम बात करें कि पे सेंस के लिए, क्योंकि अभी ये लोग, पे सेंस क्या है, लोन के लिए अग्रेसिव है, पेयू मनी की कंपनी है, तो दे आर लाइक ज्यादा दे रहे हैं। ये चेंज होते रहेंगे, ये पार्टनर्स चेंज होते रहेंगे, इनके कमीशन चेंज होते रहेंगे, बट आपको समझना ये कि मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रेजेंट टाइम में कहाँ होगा। तो यानी कि आपको लॉग इन करने के साथ ना इस लिस्ट को हमेशा चेक करते रहना, ये हर हफ्ते अपडेट होती रहेगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने आज लिख दिया है वो वैसा ही चलेगा। अब मान के चलिए 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन पे सेंस से आपने किसी का करवाया, तो आपको मिलेगा 3,000 रुपए, यानी 3%। लेकिन अगर आप वही चीज टाटा कैपिटल से करवाएंगे तो आपको मिलेगा केवल 1,000 रुपए, क्योंकि इन्होंने 1% लिखा हुआ है। ठीक है, बट क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि टाटा कैपिटल जो कस्टमर को इंटरेस्ट रेट लगा रहा हो वो कम हो और पे सेंस कस्टमर को इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगा रहा हो। तो मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप एक कस्टमर को दो जगह अप्लाई नहीं करवा सकते, ये आपकी चॉइस है, आपका बिजनेस है, आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी। अब एक इसमें स्पेशल केस है कि इसको कोई क्रेडिट स्कोर नहीं चाहिए वोल्ट मनी को। रीजन इसका ये है क्योंकि आपके पास जो म्यूचुअल फंड अगर है किसी के पास और उसके ऊपर वो लोन लेना चाहता है, तो ये एक ऑप्शन है, इसके लिए क्रेडिट स्कोर नहीं देखेगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। सो यहां तक आपको आई होप क्लियर होना चाहिए, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? सबको ओके है? प्लीज राइट इट, मुझे नहीं तो क्लियर नहीं होगा कि आपको पता है नहीं। ऑल राइट, थैंक यू, इतना तो अब आप सब समझ गए होंगे। थैंक्स। तो ये पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, अच्छा, इनके यहाँ दोनों, कुछ चीजों में बिजनेस लोन भी है, कुछ में पर्सनल भी है। कुछ लोग बिजनेस लोन देते हैं, कुछ केवल पर्सनल लोन ही देते हैं। तो नॉर्मली दे वो सारे ही ऐप मोस्टली वो दोनों के लिए काम करते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, वो हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, इसमें फिक्स है, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर लो आपको 1,100 रुपए मिलेंगे। पहले ये 600 रुपए था, अब ये 1,100 रुपए है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं है। अभी मैंने इसका क्रेडिट स्कोर का चार्ट इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि वी आर स्टिल एनालाइजिंग एक बड़ा रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। इसके अंदर सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स ही हैं, तो हम अभी इसमें एनालाइज कर रहे हैं कि किस बेसिस पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो इसके लिए अभी इसका क्रेडिट कार्ड का भी हमने नहीं डाला है इसके अंदर। सेविंग अकाउंट ओपनिंग में जाएंगे आप, तो सबके अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं 250, 300, 500, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कस्टमर के साथ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ये जर्नी होती है कस्टमर की जो 1 और 2 डेज के अंदर करानी होती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कई साइटें आपको ऑप्शन देती हैं कि आप अपना डेटा आज का सेव कर लो और फिर आप काम करो। कुछ साइटें कहती हैं कि नहीं, आज का काम है आज ही करो। तो ये थोड़ा सा एक चीज है। करंट अकाउंट में अभी हमारे पास सिर्फ एयू है जिसमें आपको 500 रुपए मिलते हैं। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड वाले पोर्टल को थोड़ा ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि इसका कमीशन अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है। लेट्स वर्क फॉर डीमैट। डीमैट में ज्यादा कमाई नहीं है,
लेकिन लोग आते हैं जिनको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। लेकिन इसमें एक चीज है, वो ये है कि खाली अकाउंट ओपनिंग से कुछ नहीं होता है, उनको कुछ मिनिमम अमाउंट का ट्रेड भी करना पड़ता है, एटलीस्ट वन। तो किसी केस में ये 3000, इसमें क्रेडिट स्कोर नहीं आएगा, इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन लिख के आएगा। ये थोड़ा सा एरर है हमारे एंड से कि अब जैसे पेटीएम है, पेटीएम ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल 1500 रुपीज का ट्रेड करना बहुत जरूरी है, तभी हम आपको कमीशन देंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें जो क्रेडिट कार्ड और म्यूचुअल फंड के केस में है, सॉरी डीमैट और म्यूचुअल फंड के केस में है, मैं उसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। बट आप कम से कम इसको शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल वर्क अपॉन दिस। तो आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज ओके, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉर द अदर स्टफ्स। सो आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम लीड कैसे कैप्चर करते हैं। मैं आपको एक लीड कैप्चर करके दिखाता हूँ। लीड कोटा क्या होता है, ठीक है? लीड अवार्ड क्या है? एक महीने में आपको कितनी लीड मिलेंगी या आप कितने लोगों को रेफर कर सकते हो। और लीड रिस्ट्रिक्शन क्या है, लीड स्टेटस क्या है, कमीशन एंड सेटलमेंट कैसे होगा, टैक्सेशन क्या होगा। तो पहली बात समझनी यह है कि मैं डेमो देने जा रहा हूं, फिर ये चीज रह जाएगी नहीं तो, कि अगर आपको मैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक सिस्टम देता हूं तो उसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत है, ठीक है? तो इसमें हमने एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो ये है कि आप लोन और क्रेडिट कार्ड की जो लीड्स हैं वो एक महीने में 30 ही अप्लाई कर सकते हो अभी के लिए। क्यों? अगर 30 में आपके, मान के चलिए, 2 लोगों का सक्सेस हो गया या 4 लोगों का सक्सेस हो गया, तो पर सक्सेस मैं आपको 5 लीड और अप्लाई करने दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 30 है और आपने 2-3 लोगों को रेफर किया, लेट्स से अब आपका कोटा रह गया 15, आपने 15 लोगों को रेफर कर दिया और आपके 15 में से 3 लोगों का क्रेडिट हो गया है, उनका उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, उनका लोन अप्रूव हो गया, तो आपको 15 क्रेडिट मिलेगा। मतलब क्या है कि आप कोशिश ये करें कि हर 5 में से एक सक्सेस हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिस्टम का अब्यूज कहते हैं उसको। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना टाइम खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब आप यहाँ से लीड लगाओगे तो यहाँ से एक टीम को काम भी करना होगा, उस व्यक्ति से बात भी करनी होगी, कोई हाथ पकड़ के आपके फॉर्म नहीं भरवाएगा। देखिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उनसे डिस्कस करें और अप्लाई करवाएं, तभी कमीशन है, खाली फॉर्म भरने का कमीशन नहीं है, ठीक है? सो जितना ये मेरे लिए बिजनेस है, आपके लिए भी उतना ही बिजनेस है, राइट? सो रिस्ट्रिक्शन अभी लगाई है, और बैंक अकाउंट और डीमेट कितने भी खोल लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के भी फॉर्मूलाज हैं, वो हम बता देंगे आपको। तो लीड कोटा क्या है? 30, जिसमें रिस्ट्रिक्शन केवल लोन और क्रेडिट कार्ड पे है, बाकी आप कर सकते हो। फ्री लीड 30 आपको हर मंथ मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्ट्रिक्शन समझा दी, स्टेटस और उस पर हम आते हैं। अब एक लीड का डेमो करते हैं, फिर बाद में बची हुई चीजें करेंगे। तो लेट्स से मेरे को एक पर्सनल लोन अप्लाई करना है, क्रेडिट बी का, क्योंकि मुझे वो 3% दे रहे हैं। तो क्रेडिट क्रेडिट भी बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि 700 से ऊपर का मेरे पास क्रेडिट स्कोर हो। देखिए, कोशिश ये करिए कि 750 वाले केसेस हों तो जल्दी होगा। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत इंस्टेंटली लोन देते हैं, कुछ कंपनियां 1 घंटे में भी लोन दे देती हैं, कुछ कंपनियां जिनका थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है वो 2-3-4 दिन भी ले लेती हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? सो लेट्स से हमने क्रेडिट बी को अप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है। नाउ वी विल हिट वेरीफाई। आप किसी को भी रेफर करेंगे तो पहली बात, वो ओटीपी वेरीफाइड होना चाहिए, नहीं तो हमारा सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसका एक ओटीपी आएगा, मैंने अपने किसी
कलीग का नंबर ही दिया है ऑफिस के। सो अभी मेरे पास ओटीपी आ रहा है, ये जब आप इसे, सॉरी, व्हाट हैपेंड, 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट 882947, लेट मी सी इन द लीड्स। 528, ओके। सो या ये लीड बन गई थी सिस्टम में ट्रेड बी के नाम से। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी एप्लीकेशन एक और तैयार करता हूँ। So let's say I'll go with patience now, and I'm writing a number here. So I need OTP. So let me get the OTP from the person. Just a second. So guys, I think now I can verify the OTP. Yeah, this screen is very important. यहाँ पे क्या है कि आप WhatsApp पे या कहीं पे भी कुछ भी शेयर करना है तो पहले आपको लीड तैयार करनी है। ये एक लिंक यहाँ पे जनरेट होगा जिसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिए, या फिर आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं WhatsApp के थ्रू। अगर आपको डिटेल्स भरनी है, आप कस्टमर को साथ बिठा के यहाँ पे अपनी डिटेल्स भी भर सकते हैं। बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लिंक है ये यूनिक है सभी कस्टमर्स के लिए। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप किसी के साथ भी इसे शेयर करते हैं, वो व्यक्ति दूर बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, वो कर सकता है, लेकिन उसके संग फॉलोअप की जिम्मेदारी आपकी है। अब अगर आप सोचें कि बेस्ट तो तरीका ये है कि कस्टमर आपके साथ बैठा हो और आप काम करें। इसके बाद जब आप ये लिंक खोलेंगे तो इस तरह का एक पेज आएगा, फिर से एक डिटेल दोबारा उनके साथ भरवानी है। हमने ये इसलिए करा है कि एक बार हमारे पास उसकी एंट्री आ गई, यानी कि मोबाइल नंबर आ गया, तो वो फिर यहाँ पे जो भी करेंगे पोर्टल पे, वो सारी डिटेल हमें कैप्चर होगी। अगर हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं आया और बैंक की साइट पे यहाँ वहां वो चला गया, तो फिर आप ट्रेसिंग नहीं कर पाओगे उसकी। तो अगर आपने ये लिंक डायरेक्ट शेयर कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको समझना है कि पहले लीड बनानी है, उसके बाद शेयर करना है। अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे करो। तो हमने क्या किया है कि आपके लिए ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस बना दिए व्हाट्सएप पे कि लेट्स से मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, हे आई जस्ट फाउंड आउट द अमेजिंग पर्सनल लोन, guess what, like there are so many messages we have created for everything, for business loan, personal loan, सबके लिए हमने बना दिए हैं। तो आपके दोस्त को अगर पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन वाला मैसेज भेज दीजिए। अगर आपके दोस्त बिजनेस करते हैं तो उनको आप बिजनेस लोन वाला मैसेज भेज दीजिए। सो इसमें कुछ करना नहीं है, दिस इज वेरी इजी टू डू। ओके,
अब जो ये लीड बनाई है मैंने इस वाले नंबर की, वो आपको दिखेगी सिस्टम में। ये हमने पेसेंस की जो अभी लीड बनाई थी वो। अभी हम जो बात कर रहे थे लीड कोटा की, वो ये है 13 हो गया है। अब जैसे ये कोई भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो ये ऑटोमेटिकली 18 हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए आपका एप्लीकेशन कोटा खत्म हो गया है, 30 के ऊपर आपने लीड यूज कर लिए लोनो क्रेडिट कार्ड के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर 5 रुपीज पर लीड परचेज करेंगे। रीजन बीइंग हर लीड पे काम होना है। तो जितना आप यहाँ पे सिस्टम को कम यूज करें, सक्सेस रेशियो बढ़ाएं, आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अगर आपके महीने में 20 चीज अप्रूव हो गई, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, डीमैट हो, हम आपको 5 पॉइंट्स दे देंगे। तो 20 का मतलब आपके पास 100 है। 100 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हमें ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगानी पड़ रही है कि लोग जबरदस्ती में यहाँ बैठ के फॉर्म ना भरें। ठीक है। सो आई आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा सिस्टम क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। या सो लीड रिस्ट्रिक्शन, फ्री, अवार्ड, कोटा, डेमो। ओके, लीड स्टेटस कहां से दिखेगा, क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो भी लीड है वो तो आपको लीड बोर्ड में दिखेगी। ठीक है। अब इन सब स्टेटस के जो मीनिंग है ये ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इतने सारे बैंक्स और इतनी चीजें होने के बावजूद ये एक बैंक का एक रिपोर्ट है जो बहुत ही मतलब बड़े स्ट्रक्चर पे आता है। अब इतने सारे बैंक्स को एक जगह एग्रीगेट करके हम लोग आपको ये स्टेटस देते हैं। बट आपको ध्यान क्या देना है कि किसका रिजेक्ट हुआ, किसका कंफर्म हुआ, ये रोज चेंज नहीं होता है। मान लीजिए बैंक की छुट्टी है, सैटरडे संडे हॉलीडे, ये चेंज नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये चेंज नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। बैंक जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं देगी हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अब जिनका कमीशन है, मान लीजिए आपका कुछ अप्रूवल आ गए, ठीक है। अब आपने मान लेते हैं कि केवल क्रेडिट कार्ड पे काम किया और 6 क्रेडिट कार्ड आपके अप्रूव हो गए, टू बी सेटल्ड लिखा हुआ है। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कमीशन सेटलमेंट है ये 75 डेज में होगा। कुछ केसेस में 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज में हो सकता है अगर पहले पे आउट आता है हमको। 75 इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि लोग, अगर मैंने यहाँ 60 बोल दिया तो लोग 61 डे पे मेरे को कॉल करेंगे। तो आई डू नॉट वांट दैट। 75 डेज मतलब आप उससे पहले हमें सपोर्ट पे अगर रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हमने यहाँ लिख दिया कि ये सेटल होगा, और जिस समय इसका स्टेटस सेटल्ड हो जाएगा या इसका स्टेटस कमीशन पे आउट, तो आपका पैसा आपके वॉलेट बैलेंस में जीएसटी सुविधा केंद्र के पोर्टल पे दिख जाएगा। तो क्लियर कर रहा हूं मैं एक्सपेक्टेशन, 75 डेज लेके चलिए तो काम होगा। 60 में आ जाए, 50 में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 75 डेज मतलब उससे पहले आप सपोर्ट नहीं बनाएंगे केस। ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर नाउ, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, टैक्सेशन। देखिए, अगर आपको आपका कमीशन ऑन टाइम चाहिए तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो बैंक में। क्योंकि एज पर आरबीआई, इनकम टैक्स इज सेइंग आप इन लोगों का 20% कमीशन या टीडीएस काटो। हमें नहीं काटना, हो हम 20% काट देंगे लेकिन प्रॉब्लम आपको होगी, राइट। तो वो 20% आप इनकम टैक्स की साइड पे जाके जो भी आपका तरीका है आईटीआर भरने का, वहां से क्लेम कर सकते हो। हमारे पास नहीं आ रहा है, वो गवर्नमेंट को जा रहा है। अगर आपका लेट्स से 20% या 10%, मुझे श्योर नहीं है क्या नंबर है, वो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट समझा देंगे। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है, उसका परसेंटेज कम होता है, आई थिंक 2.55। वी हैव टू चेक दैट कि हाउ मच परसेंटेज विल बी गिवन। क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक अलग स्लैब भी होता है। एक चीज और भी होती है कि आप हमसे पूरे साल में कितना पैसा ले रहे हो। तो वी हैव टू वेरीफाई विद आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि ये किस तरीके से टैक्सेस पे लगेगा। बट यस, एक छोटा सा टीडीएस कटता है और वो आपको उसकी स्लिप मिल जाएगी। आप अपना गवर्नमेंट की साइट पे जाके ईयर एंड पे उसे क्लेम कर सकते हैं। दैट इज इट अबाउट लीड्स। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं कि मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं,
लोन या क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में कम चाहिए, लोन में ऑफ कोर्स देखो बैंक पैसा दे रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी ही। तो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, या तो आप वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे या आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जिसको हम रेफर करेंगे आपको उसी को डाउनलोड करना है, राइट। तो ये बात क्लियर है। बात करते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की। आज की डेट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बट बेस्ट तरीका क्या है, आप जिसका भी डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं उसका अगर आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उसका काम नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड जिसको लोन लेना है लिंक नहीं है उसका काम नहीं हो पाएगा। ये नॉर्म्स हैं आजकल के। आइडेंटिटी में वोटर आईडी कार्ड भी चल जाता है, और भी चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन आधार और पैन बेस्ट है। इनकम, मतलब ये आइडेंटिटी में पैन हटा देता हूं, मैंने पैन का जिक्र आइडेंटिटी के लिए किया है क्योंकि इससे ही कहानी शुरू होती है। इनकम वेरिफिकेशन, आपको आपको लोन दे रहा है तो भाई वो आपसे पूछेगा ना आप कमाते क्या हो। तो इसमें दो टाइप के लोग हैं, सैलरीड प्रोफेशनल्स और कंपनीज। तो सैलरीड का तो बहुत सिंपल है कि भाई मेरी इनकम इतनी है, मेरा फॉर्म 16 ये है और मैं इतना साल में इनकम कमाता हूँ, मेरा आईटीआर जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो ये है सब। तो नॉर्मली देखिए, लोन का अमाउंट कम हो तो शायद आईटीआर एक साल की चल जाए 50,000 के लोन के लिए, कुछ कंपनियां मांगती भी नहीं है। लेकिन इनकम वेरीफाई करने के लिए उन्हें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है? तो बैंक स्टेटमेंट लगती है, किसी केस में 3 महीने की लगती है, किसी लोन में 6 महीने की लगती है, किसी बिजनेस होगा तो हो सकता है 1 साल की भी मांग ले, बेस्ड ऑन द डेटा। अब बिजनेस होगा तो उसके अंदर ये भी होगा कि भाई टर्नओवर क्या है साल का, 3 साल का रिटर्न भरा है नहीं भरा, हो सकता है 2 साल का मांग ले, बट डिपेंड्स कि किस कंपनी के संग हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे जैसे स्टेप्स आगे आते जाएंगे लोगों को वो चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है। हर कंपनी का एक अलग लॉजिक है, मैं नहीं कह रहा सारी कंपनियों में सेम है, बट थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, बट मोर और लेस यही है। फिर मैंने आपको सिविल स्कोर पहले ही बता दिया था। प्रूफ ऑफ एड्रेस, कोई भी काम करें आप, इवन जीएसटी सुविधा केंद्र भी खोले तो प्रूफ ऑफ एड्रेस लगता है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन मतलब कैसे होता है, बिजली का बिल हो गया, कोई और यूटिलिटी का बिल हो गया, अग्रीमेंट्स हो गए, और भी बहुत चीजें होती हैं, तो यू कैन शो दैट। अब कभी भी आप लोन के, देखिए क्रेडिट कार्ड में मंथली एक्सपेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चाहते हैं बहुत ज्यादा हो, बट केस ऑफ लोन ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो स्टेटमेंट दिखा रही है आपकी जितनी कमाई है उतना ही खर्चा है तो आप ईएमआई कहां से भरोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई और भी लोन चल रहे हैं इससे पहले, ये भी वो वेरीफाई करते हैं। आप भी वेरीफाई कर सकते हो कि भैया कितना कमा लेते हो, हाउ मच यू अर्न, हाउ मेनी लोन्स यू आर रनिंग, ओके, कितने महीने का आईटीआर है। थोड़े से सवाल आप सीख सकते हो, इसके लिए हम फर्दर ट्रेनिंग देंगे, बट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ हाउ दिस वर्क्स, ओके। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है सभी को, राइट? ओके, सो एक छोटी सी सैंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ज्यादा काम नहीं किया आपने। आपके 4 पर्सनल लोन अप्रूव हो गए, 2 क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गए, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। तो अगर 4 पर्सनल लोन अप्रूव हो रहे हैं, लोन अमाउंट 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख ऐसे है, और 1.5% किसी एक कंपनी का है, 2% किसी और का है, 2.5 किसी और का है, 3 किसी और का है। तो बेस्ड ऑन योर लोन अमाउंट, मतलब 5 लाख के लो, 5,25,000 यानी 5.25 लैक्स पे लमसम आपकी एक कैलकुलेशन बन रही है, विच इज 13 सॉरी 13,375, 13,375। तो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड कि इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस पे टीडीएस लगेगा जैसे मैंने बताया। अगर आप 2 करंट अकाउंट खोलते हैं 500 रुपए आपको मिल रहा है 1,000, सेविंग अकाउंट 2 खोलते हैं 500 रुपए मिल रहा है 1,000, क्रेडिट कार्ड 2 ओपन होते हैं और 1,100 रुपए के हिसाब से 2,200, और डीमैट में आपको 150 रुपीज मिलता है, इट्स लाइक 4,500। तो अब आपको समझना ये है कि जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ
क्या उसे लोन चाहिए, इनकम क्या है, आईटीआर है नहीं है, ठीक है। अगर जितना आप खुद से इस पे काम करेंगे, आपको बहुत बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि कल को आप कुछ बड़ा करते हैं, कोई बड़ा लोन कराते हैं, लेट्स से हमारे यहाँ पे 10,000 रुपए से लेके 10 लाख तक के लोन होंगे, पर्सनल लोन्स या बिजनेस लोन्स। अब नाउ इट बिकम्स अ सीरियस मैटर, राइट। अगर वो अमाउंट 10 लाख रुपए होता है, ठीक है, तो अगर 3% आपको मिल रहा है तो 30,000 होता है। मैं वहां तक जा नहीं रहा हूं, मैं वहां की बात भी नहीं करना चाह रहा, बट लेट्स से 4 लाख 5 लाख वाली रेंज भी है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के संग लिटिल बिट सीरियस होना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस अपॉन, कि आप इस पे काम करें, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हम उस लीड को ओटीपी के बिना मानेंगे नहीं। अगर वो लीड यहाँ नहीं है, यहाँ पे उसका नंबर कैप्चर नहीं हुआ और आपने डायरेक्ट लिंक दे दिया, तो कोई फायदा नहीं है। लिंक को आप तब शेयर करें जब लीड ओटीपी वेरीफाई हो जाए, तो मैंने बोल दिया। ज्यादा लीड्स ना बनाए एक व्यक्ति की। मैंने फिर बोल रहा हूं, अगर आप एक बंदे का लोन अप्लाई करते हैं एक कंपनी में, लेट्स से क्रेडिट बी पे, तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि इसका वहां से रिजेक्ट हो गया या अप्रूव हो गया। अगर रिजेक्ट हो गया तभी आप दूसरा लीड बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति की लीड को 5 अलग अलग जगह पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें, तो करना भी नहीं। इसलिए नहीं करना कि अगर आपने उनको अप्लाई किया, तो आप ये बात मान के तय कर लीजिए कि अगर वहां से अप्रूवल और रिजेक्शन के बिना आपने उसको 10 जगह अप्लाई करेंगे, तो आपका सिबिल स्कोर बार बार हिट होगा, रिजेक्शन बढ़ेंगे, सिबिल स्कोर और डाउन हो जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा नहीं करना है। एक दो, दो जगह से रिजेक्ट हो गया तो अब नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक और बात है कि आपको 5 लोगों में एक के ऊपर ऐसा श्योरिटी रहना है कि मेरा इसमें फायदा हो, क्योंकि आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे। अब आप इसको मार्केटिंग करने के लिए प्रोलॉजिक पोस्टर ऐप को यूज कर सकते हैं। वहां पे लोन वाला है, क्रेडिट कार्ड वाला, सब कुछ बिजनेसेस हैं। आपको करना है क्या है कि आप अपना स्टेटस लगाओ पर्सनल लोन वाला, और आप अपने बंदे को किसी को भी बोल सकते हो कि कांटेक्ट मी, कॉल ऑन दिस नंबर। यू नो बेटर देन मी कि व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस पे क्या क्या करते हैं। आप घर घर वालों के फोटो लगाते हैं, ये करते हैं, लेकिन थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। तो यू विल अंडरस्टैंड द प्रोलॉजिक पोस्टर ऐप जो जीएसटी सुधार चला रहे हैं, उनको पता है कि हमने एक ऐप दे रखी है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रांडिंग हटा सकते हैं। हमने आपको व्हाट्सएप मैसेज पहले से लिख के दे दी, तो आप अच्छे से यूज करिए। और जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि आप एप्लीकेंट के साथ प्रेजेंट रहें, उसके साथ इन पर ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे काम करें और साथ बैठ के भरवाएं फॉर्म, ऑनलाइन जो भी है। और जो करंट और सेविंग अकाउंट की एप्लीकेशन है वो सेम डे पे खत्म होनी चाहिए। दिस इज इट। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई नो यू माइट हैव सम क्वेश्चंस, तो फील फ्री टू आस्क on the reply of the webinar. So if anybody has any doubt, please contact support, or people who are new who wants to take GST सुविधा केंद्र, वो अपने अपने सेल्स एक्सपर्ट्स या हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, राइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, हैव अ गुड वीकेंड, एंड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू, बाय।